सो पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक किया था. आज ग्रेविटेशनल ये सेल्फ एनर्जी करके एंड देन वी कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल. और उसके बाद फिर एस्केप वेलोसिटी और ये सब चीज करेंगे. So it is the energy possessed by so what is gravitational self energy? It is the energy possessed by a body due to its interaction. So energy possessed by a body due to the interaction forces inside the body. This can be defined as the work done in assembling all the particles of a body in a definite shape and size, or it is the work done in creating a body. So एक body को कॉन्स्टिट्यूट करने में मतलब बनने में उसमें जितना एनर्जी वर्क डन लगता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेकिंग दैट होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट साइज्ड masses. So that is known as gravitational self energy. So gravitational self energy of a uniform solid sphere is given as minus 3 by 5 gm square by r, and gravitational self energy of a uniform spherical cell is minus half gm square by r. Now let us do few questions. In this example, Excuse me, sir. yes, So show the previous page. I will note down the formulas. Sir, fine. example 21 is three particles each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle. So there is this equilateral triangle. At the three corners, we have three particles. Okay. Now, three particles each of mass m. So here also the mass is m, and mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of side D. Calculate the potential energy of the system. Okay. Work done on this system if the side of the triangle is changed from D to 2D. So potential energy मैंने क्या बोला था कि सारे potential energy मतलब सारे pairs का जो potential energy है उसको add कर लेते हैं. So we know that potential energy of this whole system U is equal to U. मान लो ये point ये A है, ये B है और ये C है. तो potential energy between particle AB plus potential energy between BC plus potential energy between particles AC. So net potential energy is potential energy between AB का मतलब हो गया देखो दो पार्टिकल के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो G m1 m2 अपॉन r होता है. सॉरी, सो G m1 माइनस ऑफ G m1 m2 अपॉन r. तो इसको अगर हम लोग पुट करते हैं तो माइनस ऑफ Gm² अपॉन d minus of gm square upon d and minus of gm square upon d. So this is minus of 3gm square upon d. Now work done on this system if the side of energy is changed from d to 2d. So work done is always given as final minus initial. So work done is equal to change in potential energy. तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था so this is equal to फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ 3gm². अब डिस्टेंस बाद में 2d था, इनिशियल क्या है माइनस 3gm² बाई d. सो दिस इज माइनस ऑफ दिस. सो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो दिस बिकम्स 3gm² अपॉन 2d. सो दिस इज द work done. Is it clear? Yes, sir.
The next question is, the masses and the radius of the earth and the moon are m1, m2 and r1, r2. So mass and radius of earth and the moon. So let's say अर्थ यहाँ पे हो गया, मून यहाँ पे हो गया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, यहाँ रेडियस r1 है, यहाँ रेडियस r2 है, एंड देयर सेंटर्स आर एट ए डिस्टेंस d अपार्ट. तो इनका जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच में, दिस इज इक्वल टू d. And their centers are at a distance d apart. The minimum speed with which a particle of mass m should be projected. So minimum speed with which a particle of mass m should be projected from a point midway between the two centers so as to escape to infinity will be. तो यहाँ पे एक पार्टिकल है बिल्कुल सेंटर पे, है ना, इसका मास m है. So minimum speed with which the particle of mass m should be projected from a point midway between the two centers. यहाँ पे हम लोग को इसको कितना स्पीड देंगे कि ये इंफिनिटी तक चला जाए, escapes to infinity. ठीक. So देखो बेसिकली इसमें जितना इन दोनों के बीच में, इन दोनों पार्ट मतलब इस पूरे सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है, सो पोटेंशियल एनर्जी of mass small m due to earth and moon u is equal to minus of g m1 m upon d by 2 minus of g m2 m upon d by 2. So minus of 2gm upon d m1 plus m2. Now मान लो escape velocity v है, let escape velocity is equal to v. So now when the body reaches infinity, जब ये बॉडी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता ही है इंफिनिटी पे, एंड काइनेटिक एनर्जी बिकॉज उसको हम लोग को मिनिमम स्पीड निकालना है जिससे वो एस्केप हो जाए, तो फाइनल स्पीड इसका जीरो होना है. सो व्हेन द बॉडी रीचेस इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ बिकम्स जीरो. ठीक है, दोनों जीरो हो जाएगा. सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, so by conservation of energy, so net potential energy is minus of 2gm upon d divided by m1 plus m2 into m1 plus m2 plus of half into mass mv square is equal to 0. So we'll get half mv square is equal to 2gm m1 plus m2 by d. अब स्मॉल m तो कैंसिल हो गया, so we get v square is equal to 4g m1 plus m2 divided by d.
So V square is equal to 4g m1 plus m2 by d, or V is equal to 2 times root under g m1 plus m2 upon d. Yes, sir. हो गया, आ गया समझ? Yes, sir. आई थिंक फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका. Now 23rd is if the satellite is stopped suddenly in its orbit, which is at a distance equal to radius of Earth from Earth's surface and allowed to fall freely to the Earth, the speed with which it hits the surface of Earth, we have to find. So, देखो, if the satellite is stopped suddenly in its orbit, मान लीजिए ये एक ऑर्बिट में सैटेलाइट इज गोइंग, सो सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है. So if the satellite is stopped suddenly in its orbit, which is at a distance equal to radius of Earth from the Earth's surface, मतलब radius of Earth r हो गया और यहाँ से ये r और हो गया, तो टोटल जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 2r, ऑर्बिट का जो रेडियस है. The speed with which it hits the surface of Earth will be, so देखो फिर से यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे इन दोनों पार्टिकल के बीच में. So by conservation of energy, so basically जब ये रुक गया उस समय वेलोसिटी 0 हो गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा माइनस ऑफ जी एम एम बाय 2r, ठीक है. एंड जो सर अर्थ का मास क्या है? अर्थ का मास कैपिटल M है. और नो सर, वैल्यू वैल्यू का जरूरत होगा क्या? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ ये कैपिटल है. वैल्यू ऐसे हमको याद नहीं है अभी. मास कैपिटल इसका कितना, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg होता है. सो माइनस जी एम एम अपॉन 2r, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, इज इक्वल टू फाइनल जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम स्मॉल m upon r plus of half mv square. ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है वैल्यू. सो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी एम एम अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. स्मॉल m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर.
और v इज इक्वल टू रूट अंडर gm बाय r। अब देखो इसको करने का दो तरीका है, या तो मास ऑफ अर्थ लेके इसको यूज करके कर लो, अदरवाइज तुम gm को, हम लोगों ने अभी देखा था पिछली क्लास में कि gm इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू g, तो दिस इज r स्क्वायर इंटू g बाय r का रूट अंडर, सो रूट अंडर gr हो गया। So V is equal to root under 9.8 into radius of Earth is 6400 kilometer, मतलब 6400 into 10 to the power 3. So this will be 9.8 into so V is equal to 7919.59 meter per second और V is equal to 7.9 kilometer per second, 7.919 kilometer per second. So option 2 is the answer. तुम ये मास ऑफ अर्थ करके भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है, find the maximum height attained by a body projected with a speed v is equal to v by 2, where v is escape velocity of any object at the earth's surface. तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक जाएगा ये ऑब्जेक्ट, है ना। इसको यहाँ पे लेट्स से स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, और इसको इस स्पीड में हम लोग किस स्पीड से भेज रहे हैं, हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड से, सो v बाई 2 से हम लोग इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी तो अभी हम लोग पढ़ाए नहीं, इन सब क्वेश्चंस को ना हम लोग वेट, मैं एस्केप वेलोसिटी पढ़ा देता हूँ, तब फिर तुम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जस्ट अ सेकंड, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ओके। So escape velocity is the next topic. Let's do it and then we'll come back to those questions. Otherwise कोई sense नहीं बनेगा. So escape velocity from the surface of Earth, it is the minimum velocity required to just escape from the gravitational field of Earth. So it may be defined as the velocity of projection such that it reaches infinity with zero speed, है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी जिससे उसको फेंकें जिससे वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो स्पीड पे हो जाए। मान लो ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्पीड दे रहे हैं, कितना स्पीड दे रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी के बराबर। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जिससे वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए और वहां पे उसका स्पीड जो है वो जीरो हो जाए, फाइनल स्पीड, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है, हम लोग को पता है। सो लेट m बी द मास ऑफ अर्थ एंड r बी द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया और रेडियस ऑफ अर्थ लेट्स से कैपिटल r है। सपोज द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, राइट, is projected from the surface with escape velocity v, है ना। So at r is equal to r and v is equal to v, total initial energy at the surface of earth, तो टोटल इनिशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर है। By definition of escape velocity at r is equal to infinity, v is zero, final velocity should be zero at the distance r is equal to infinity, ठीक है। So r is basically distance, total distance from the center of earth, तो r is equal to r से लेके
r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमने फेंका है, तो एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी तो बिकॉज v जीरो है तो वो जीरो होगा ही. तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन we have final energy, mechanical energy is equal to initial mechanical energy. So half mv square minus gmm upon r is equal to, so this is total energy, initial energy is equal to 0. तो इससे सॉल्व कर लेंगे, है ना. आप ये देखिए, हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, VE square is equal to 2gm upon r, or VE is equal to root under 2gm upon r. So this is known as escape velocity. अब gm को हम लोग gr square भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 gr square by r. सो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया रूट अंडर 2gr. तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी का, रूट अंडर 2gm अपॉन r और रूट अंडर 2gr. तो ये दो फॉर्मूलेज हैं एस्केप वेलोसिटीज के, ठीक है. नाउ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे तो हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से निकाल रहे हैं, अब हम लोग हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जब सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h पे है उस समय एस्केप वेलोसिटी कितना होगा. तो सपोज बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, इन दिस केस है ना, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज r प्लस h. तो v escape at height h is given by half mveh square माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, यहाँ पे आर था पहले, अब आर प्लस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एट फ्रॉम हाइट एच इज रूट अंडर 2gm बाई आर प्लस एच, या इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर gm को जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है. सो ये एस्केप वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट एच. Yes, sir. Now, important points if you see for this escape velocity. First is the energy given to the body. Okay. This fourth point is not needed. So energy given to the body to project it with escape velocity is called the escape energy or binding energy. The total energy of a body is reduced to 0 to enable it to escape away from the gravitational field of Earth. The value of escape velocity does not depend upon the mass of the projected body. Instead, it depends on the mass and radius of the planet from which it is projected. तो हम लोगों ने देखा कि escape velocity is equal to root under 2gm upon r. तो ये किस पे डिपेंड करता है, मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m पे नहीं डिपेंडेंट, दैट्स व्हाट इज बीइंग रिटन. Fifth point is the value of escape velocity does not depend on the angle and direction of projection. Instead, it depends on density and mass and acceleration due to gravity of the planet. ठीक है, तो ये बेसिकली एंगल, किस एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है इस पे नहीं डिपेंड करेगा. Now let's come back to those questions which we were doing abhi. So 24th example, find the maximum height attained by a body projected with a speed v is equal to v by 2. ठीक है, तो इसका जो इनिशियल स्पीड है ये v by 2 है, हमें निकालना है किस हाइट तक ये जाएगा. यहाँ पे रेडियस r है, इसका मास कैपिटल M है. सो देखो इनिशियल स्पीड जो है
है ना। यहाँ पे जो स्पीड है दिस इज v अपॉन 2, दैट इज हाफ ऑफ रूट अंडर gm अपॉन रूट अंडर 2gm अपॉन कैपिटल R। तो ये हो जाएगा रूट अंडर gm अपॉन ये 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, gm अपॉन 2r हो गया। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन 2r और root under gr upon 2. So this is the initial velocity. So maximum height reached हम लोग को निकालना है. So total energy यहाँ पे initial kinetic energy is half mv by 2 का whole square plus minus of gmm upon r is equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, बट पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm अपॉन r प्लस h हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ m v स्क्वायर है ना, इसी में रखते हैं gm में, जिससे इधर भी कैंसिल हो जाए। हाफ m इंटू gm बाई 2r हाफ एम वी बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब gm बाई 2r माइनस ऑफ gmm अपॉन r is equal to minus of gmm upon r plus h. So gmm upon 4r, gmm upon 4r minus gmm upon r is equal to minus gmm upon r plus h. So 4 minus 3 gmm by 4r minus gmm upon r plus h. तो gmm cancel, negative negative cancelled, 3r plus 3h is equal to 4r और r is equal to 3h और h is equal to r upon 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 25th question है, with what velocity should a body be thrown upward from the surface of the earth so that it reaches a height of 10 RE? है ना, अर्थ मास। ये तुम लोग खुद से ट्राई करो फटाफट। एक्सक्यूज मी सर, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? रेडियस आया ना, r h इक्वल्स टू r। नहीं, h इज इक्वल टू r बाई 3 आया था हम लोग का। तो मेरे का r आया सर, मैंने वो किया था, तो ve की जगह √2gr डाल दिया। v, हाँ तो लेकिन इनिशियल वेलोसिटी v बाई 2 है ना। हाँ तो मतलब ve की जगह डाला ना, ve अपॉन हाफ कर दिया पूरा।
जी कौन सा स्मॉल जी लिखा था, यस सर, स्मॉल जी। तो V इज इक्वल टू रूट अंडर GR होता है। रूट अंडर 2GR होता है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो रूट अंडर GR बाई 2 हो जाएगा। रूट अंडर 2GR को 2 से डिवाइड करोगे, सो अंदर स्क्वायर रूट के जाएगा तो वो 4 हो जाएगा ना, तो हाफ ऑफ ये है। रूट अंडर 2GR हो गया एस्केप स्पीड, सो हाफ ऑफ एस्केप स्पीड इज इक्वल टू रूट अंडर 2GR बाई 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हाफ है, अंदर जाएगा तो 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर GR बाई 2। यही किया है। यस सर। हाँ, तो इससे भी आएगा आंसर, H इज इक्वल टू R बाई 3 आएगा। ओके सर। इसको अटेम्प्ट करो। Now, with what velocity must a body be thrown upward from the surface of the earth so that it reaches a height of 10 RE? So H is equal to 10 RE. ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। सो जो इसके सेंटर से अगर हम लोग इसका पूरा डिस्टेंस देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 11 RE. RE plus 10 RE is 11 RE. So with what velocity must a body be thrown upward from the surface of the earth so that it reaches a height of 10 RE? Earth's mass ME is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Radius RE is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter, and G का value is 6.67 10 to the power minus 11. So हम लोग को निकालना था कि किस स्पीड से हम लोग इसको यहाँ से फेंक रहे हैं। लेट्स से हम लोग इसको इनिशियल स्पीड v से फेंक रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो जो इनिशियल एनर्जी है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, है ना, इसका मास स्मॉल m हम लोग मान लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर माइनस gm m इंटू स्मॉल m अपॉन RE इनिशियली था। बाद में जाके दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, माइनस gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 11 RE हो गया। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, g स्मॉल m इंटू m इंटू RE, 1 minus 1 by 11, 11 minus 1 is 10 by 11, g small m इंटू RE, ठीक है। अब इनको इक्वेट कर दिया, स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज 20 by 11 gm अपॉन RE, ठीक है, और v इज इक्वल टू 20 by 11
GRE square upon RE का square root. So root under 20 by 11 into 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6 meter. into 9.8 into 6.4 divided. This is 10.67 into 10 to the power 3. 1.06 into 10 to the power 4 meter per second. Yeah, 10.67 into 10 to the power 3 meter per second and second option. एक ही है ये 10.7 और ये सेकंड और फोर्थ दोनों हो सकता है, ये दोनों एक ही चीज है ना? So both are same. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर किया मैंने भी ऐसे पर आंसर नहीं आया सर. आंसर आया नहीं आया? सर 3 into 10 to the power 3 आया मेरा 3.7. 3 into 10 कैलकुलेशंस होगा, कुछ गड़बड़ देख लेना तुम, है ना? ये 27th वाला करता है. So body of mass m, mass 100 kg falls on the earth from infinity. What will be its kinetic energy on reaching the earth? तो जो कि उसका बेसिकली जो एस्केप स्पीड होगा वही होगा काइनेटिक एनर्जी. मतलब बेसिकली स्पीड उतना ही गेन करेगा ना, ये नॉर्मल सा चीज है. हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो जितने स्पीड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए, वो वापस इंफिनिटी से अगर आएगा तो वो सेम स्पीड से हिट करेगा. सो इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो उसका जो स्पीड हिट करने के समय होगा दैट विल बी एस्केप स्पीड ओनली. सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 GR. इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. रूट अंडर 2 9.8 रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 6. So this is 2 into 9.8 into 6.4. So this is equal to 11 point, escape speed is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये तो ऐसे भी आपको याद रखना है. अर्थ के लिए एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. और इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर कर लेंगे, और हाफ इंटू मास इज 100 kg. वी स्क्वायर मीन्स 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया. किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर देंगे. सो दिस इज 100 into 11.2 का स्क्वायर. Six 6.272 10 to the power
सर हाँ जी, सर इसमें अगर हम डायरेक्टली GMM अपॉन R की वैल्यू निकालते हैं वो भी तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगा। हाँ वही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, जो अर्थ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा सेम चीज। अब हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। So a satellite is a body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit. So natural satellite, a satellite created by nature is called a natural satellite. So moon is an example. Moon is a natural satellite of the earth, which in turn is a satellite of the sun. Artificial satellite, a man-made satellite, is called an artificial satellite. So first satellite of the earth was Sputnik 1. India's satellite, first geosatellite of India was Aryabhat 1, and first geostationary satellite of India is Apple 1. Now, essential conditions for satellite motion. So, center of satellite's orbit should coincide with center of Earth. Plane of orbit of satellite should pass through center of Earth. Satellite should move around great circle of Earth. Now, orbital speed. Suppose that a satellite of mass m orbits a planet in a circular orbit of radius r with an orbital velocity v0. Now, center of orbit of satellite coincides with the center of planet, right? Gravitational force of Earth on satellite plays the role of centripetal force. So centripetal force is provided by gravitational force. So gravitational force is equal to centripetal force, or gmm by r square is equal to mv naught square by r. Centripetal force mv naught square by r हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हम लोग v0 मान रहे हैं, और gmm by r square इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, स्मॉल m कैंसिल हो गया, r को कैंसिल करेंगे तो यहाँ r बचेगा। सो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाय r, और v नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर gm बाय r. Now putting gm is equal to gr square, acceleration due to gravity on surface of earth, we obtain v naught is equal to root under gm की जगह gr square substitute कर लिया है, तो v naught is equal to root under gr square upon r. If the altitude of the orbit is h, okay, so small r को हम लोग r plus h लिख लेते हैं, so gr square by r plus h और gm by r plus h, ये orbital speed हो गया. Now if h is very very less than r, when the satellite revolves close to the surface of earth, so h is very very less than r, so उस समय r plus h will be approximated as r only. So ये जो root under gr square by r करोगे, यहाँ पे r is equal to r plus h है, तो h को 0 कर दोगे तो ये रूट अंडर gr हो गया, ऑर्बिटल स्पीड इज रूट अंडर gr. सो फॉर ऑर्बिट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हो गया फॉर ऑर्बिट्स क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड v नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर gr हो गया. वैल्यूज पुट कर लो, 9.8 और r का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, यू विल फाइंड 7.92 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड और 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. इतना स्पीड आपको होना चाहिए ऑर्बिट में, है ना, उसको रोटेट करने के लिए. सो ऑर्बिटल स्पीड फॉर अर्थ इज गिवन बाय 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. लिखिए. Yes, sir.
Now angular speed, the corresponding angular speed omega is equal to v naught by r. Okay, so putting v naught is equal to root under gm upon r, we obtain omega is equal to gm by r cube. So basically क्या है कि एंगुलर स्पीड हम लोग को पता है v naught by r होता है, तो v naught हम लोग रूट अंडर gm by r अभी निकाले, पीछे आपने देखा है ना. सो रूट अंडर gm by r हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ठीक, सो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर है, वी नॉट को कर लिया हमने 1 बाय आर इंटू रूट अंडर जी एम बाय आर, आर को अंदर लेके चले गए, आर स्क्वायर हो गया, तो रूट अंडर जी एम बाय आर क्यूब हो गया. राइट, तो दिस इज एंगुलर स्पीड. और स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच लिखेंगे तो रूट अंडर जी एम आर प्लस एच का होल क्यूब. सो दिस इज द एंगुलर स्पीड. क्लियर है? Yes, sir. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 2 पाई बाय ओमेगा होता है. ओमेगा का वैल्यू हम लोग पीछे अभी निकाले हैं, रूट अंडर जी एम बाय आर क्यूब. तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई रूट अंडर इसका रेसिप्रोकल आर क्यूब बाय जी एम हो गया, 2 पाई आर प्लस एच होल क्यूब बाय जी एम है. अगर जी एम को हम लोग स्मॉल जी आर स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर. तो ये तो तब है व्हेन यू नो h is not small. When h is very small, right, h is very very less than r, तो वहां पे r plus h is approximately equal to r. तो ये यहाँ पे 2 पाई रूट अंडर r by g हो जाएगा. तो 2 पाई रूट अंडर r by g, अब वैल्यूज पुट करेंगे है ना, तो r का वैल्यू और g का वैल्यू डाल दिया, तो टाइम पीरियड 84.6 मिनट्स आ गया, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन for satellites which is moving close to the surface of Earth. Clear? Yes, sir. Now height of a satellite above the surface of Earth. So time period 2 pi root under r plus h cube by gr square. ये वाला जो हम लोगों ने जनरल टाइम पीरियड निकाला था h हाइट पे, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गेट t स्क्वायर इज 4 pi स्क्वायर r plus h cube by gr square. So r plus h cube is t square r square into g by 4 pi स्क्वायर. बेसिकली इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर लिया. r प्लस एच इज टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर रेस टू द पावर 1/3 क्यूब रूट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर रेस टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ r. So this is the height of the satellite if we have to calculate. इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद रहेगा भी नहीं इतने फॉर्मूले. तो जो बेसिक है वो ध्यान में रखो, है ना, कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस किया है ऑर्बिटल स्पीड का, उसको ध्यान में रखोगे तो उससे सारा चीज डिराइव हो जाएगा उसी समय, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. लिख लिया? Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं. एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट इंटू आर होता है, राइट. सो ऑर्बिटल स्पीड रूट अंडर जी एम बाय आर है, उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया तो m इंटू रूट अंडर जी एम अपॉन आर इंटू स्मॉल आर अंदर लेके चले जाएंगे. सो m इंटू रूट अंडर जी एम आर स्क्वायर बाय आर, आर हो गया.
So this is equal to root under G capital M small m square into R. Now potential energy, the gravitational potential energy of Earth of the gravitational potential energy of the planet satellite system is minus Gmm upon R. So this is the potential energy. ये तो basic है. Kinetic energy is half m v naught square. तो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. v naught is root under gm by r. तो काइनेटिक एनर्जी इज gmm अपॉन 2r हो गया. टोटल एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल जहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है तो वहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस gmm अपॉन 2r. The total energy is negative because the satellite is bound by the planet's Earth gravitational field. Planet's gravitational field pulls it inside, and that's why total energy is negative. It is bounded by the gravitational pull of Earth. So total energy of satellite is half into potential energy of satellite minus kinetic energy of, which is equal to minus of kinetic energy of satellite. Now binding energy of a satellite. So energy required by a satellite to leave its orbit around the Earth and escape to infinity is called binding energy. Total energy of satellite is minus gmm by 2r. In order to escape to infinity, it must be supplied at an extra energy equal to plus gmm by 2r. So binding energy of a satellite is gmm upon 2r. जितना total energy है उतना energy उसको देना पड़ेगा इंफिनिटी तक एस्केप करने के लिए. तो बाइंडिंग एनर्जी इज सेम एज टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. Yes, sir, done. Now few important points. Now figure below shows variation of kinetic energy, potential energy and total energy with distance r from the earth. So kinetic energy जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाएंगे इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाता है, डिक्रीज करता जाता है. ये पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीज करता जाएगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है. और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव से स्टार्ट होगा और फाइनली जाके जीरो हो जाएगा.
not work done in changing the orbit of satellite. So work change in total energy minus GME upon m upon 2r, ये total energy है. Final minus initial करेंगे तो GME upon 2 1 by R1 minus 1 by R2. Final जो initial है मान लीजिए R1 और final R2 है, तो E2 minus E1 करेंगे तो you will get this value. So यहाँ से उठाकर यहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं, R1 से उठा के R2 तक लेके जा रहे हैं, तो उस समय वर्क डन इज इक्वल टू दिस. Now if satellite is moved to higher orbit, then its potential energy and angular momentum increases, but kinetic energy, binding energy and total orbital velocity decreases. है ना. Potential energy इंक्रीज करता है, इसीलिए इंक्रीज करता है क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जीरो होता है और पास में जितना रहेगा वो नेगेटिव होगा. If the gravitational force of attraction of the sun on the planet varies as f is proportional to 1 by r raised to the power n, then the time period varies as t is proportional to r n plus 1 by 2. ये सब उतना जरूरी नहीं है आपको. This is also not very important. इसको छोड़ दो ये सब. This is also polar satellite now. So polar satellite, it is that satellite which revolves in polar orbit around the earth. ये एक सैटेलाइट है, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, और ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, और एक पोलर ऑर्बिट है जो पोल्स के ऊपर से पास करता है, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के. तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जो इक्वेटोरियल प्लेन है या फिर पोलर प्लेन है, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है. तो पोलर सैटेलाइट, अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स इन पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. A satellite in polar orbit will pass over both the north and south geographic poles once per orbit. Most polar satellites are sun synchronous satellite. A sun synchronous satellite, SSO, also called a heliosynchronous orbit, is a nearly polar orbit around the planet in which the satellite passes over any given point of the planet's surface at the same local mean solar time. Now, every location on Earth lies within the observation of polar satellite twice each day. Okay. So the polar satellite are used for getting the cloud images, atmospheric data, ozone layer in the atmosphere, and to detect the ozone hole over Antarctica. उसके अलावा पोलर सैटेलाइट के अलावा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज बेसिकली एक ही पॉइंट के ऊपर होता है, जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसी के बराबर इस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड होता है, सो दैट इट इज ऑलवेज अबव दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो सैटेलाइट विच आर स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर on Earth are called geostationary satellite. They are also called parking satellites. Okay. So height of geostationary satellite कितना होना चाहिए? तो height of satellite is given by, ये हम लोग ने derive किया था, h is equal to t square r square g by 4 pi square raised to the power 1 by 3 minus r. यहाँ पे substitute कर दो values, है ना. टाइम यहाँ पे जो है 24 आवर्स रख देंगे क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना अर्थ के रोटेशन का है. तो इससे जो हाइट निकलता है दैट इज 35786 किलोमीटर. तो 35,786 किलोमीटर हाइट पे इसको हम लोग को प्लेस करना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तब जाके इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स आएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Now, few important points. The direction of rotation of geostationary satellite is from west to east. The time period is 24 hours and its angular velocity is same as that of axial velocity of Earth, revolving around its axis. Geostationary satellite can be launched just above the equator, right? The radius of orbit of geostationary satellite is r, which is 42,000 kilometers,
and its height above the surface is approximately 36,000 kilometer, जो 35,786 हम लोग निकाल रहे थे. So different values of satellite, angular velocity, linear velocity, time period और geostationary satellite basically. So this is the different values of satellite, geostationary satellite. सैटेलाइट और ऑर्बिटल स्पीड पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे और केपलर्स लॉ करके वील फिनिश द चैप्टर. सो नेक्स्ट क्लास वील फिनिश दिस ग्रेविटेशन चैप्टर. ओके, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन.